So okay, I'm just going to my Linux. Don't send any message. I will not able to see. So I'm going to my manual first. So object-oriented programming structure is going on. Class and object is completed. Constructor and destructor is completed. Operator overloading is completed. Type conversion is completed. I think inheritance. What is inheritance? What is the syntax to implement inheritance? What is visibility mode? Why visibility mode? Or what are the types of visibility mode? So we know one is private. By default, it's private. If you will not specify it, protected and public. What is public inheritance? What is private inheritance? And what is protected inheritance? We studied in the previous class. And also, I think we studied what is overriding. What is method overriding mechanism? So, what was the definition of method overriding? Multiple method having same name and same parameter in different class with inheritance is known as method overriding mechanism. I think this definition is clear to all of you. I think this program what we implemented in the last class, please let me know through your group chat. Is that clear to all of you? Please confirm. Just give some message to the user. Welcome to parent home and take its lesson. And later, I have a class child that's publicly created from parent. And inside the child class, there is nothing. So inside the main function, I will create the child class object, and object is requesting for the home. And you know what will happen. Can you please confirm what will happen? Error will come or parent home will execute. In this program, error will come or parent home will execute. Please confirm here in your group chat.
In this program, error will come or your parent home will execute because my object is which object? My object is belongs to child object. Please confirm in your group chat. Yes, no error, no error. Very good, no error. Very good. You know what will happen. If I will compile the program G++, main.c++, no any error. And if I will run this one, so welcome to parent. It's working fine. Please concentrate. Again, I am defining a home method. Home method. See out. Welcome to childhood. So you can identify. Here we implemented overriding mechanism. So can you please confirm now which home should be executed? Parent home will execute or child home will execute or both home will execute? What will happen? Please confirm. Yes, Vandana, you are right. Satyam, right, very good. Dipali, you are right. Other student, please confirm. Yes, very good. Child home should be executed. We know. If I will compile the program G++ main.c++ and if I will run, yes, you can identify. I'm getting the message. Welcome to childhood. Yes, we studied this concept in the previous class. On this program, I will teach another concept. ये प्रोग्राम में और एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे. प्लीज कंसेंट्रेट. मान लीजिए मेरा पास एक फूड मेथड खाने वाला मेथड. खाना चाहिए, सबको चाहिए, मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए. और पेरेंट डेफिनेटली फूड प्रोवाइड करता है. अभी पेरेंट वाला फूड एंजॉय कर रहे हैं होम में. सही है. COVID-19 give this opportunity to all of you to enjoy some time with your family. That's required. Right. So let the parent have a food method and giving some message to identify welcome to parent free food. पेरेंट जो फूड प्रोवाइड करते हैं क्या वो कुछ पेमेंट चार्ज करते हैं लाइक जोमेटो स्विगी? नो, राइट. पेरेंट फूड is always free. Parent food is always free. They are not charging on you like Swiggy, Zomato, right? Yes, that's the most. So please confirm here. ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, चाइल्ड के पास होम है, लेकिन चाइल्ड के पास फूड नहीं है. तो अगर ऑब्जेक्ट अभी फूड को कॉल करेगा तो कौन सा वाला फूड कॉल होगा? होम कौन सा वाला चल रहा है? होम चल रहा है चाइल्ड वाला. सही है. लेकिन फूड किसका चलेगा? चाइल्ड के पास तो फूड ही नहीं है. फूड का वाला जो फैसिलिटी है चाइल्ड के पास अवेलेबल ही नहीं है. किसके पास अवेलेबल है? पेरेंट के पास अवेलेबल है. सो व्हाट यू आर थिंकिंग? Error will come or parent food should execute? Please confirm through your group chat. Just share your visualizations with me. Which code should be executed? एक ही तो food है. Very good. Somya. That's Somya or Somya? I'm not getting. If Somya, that's a girl. If Somya, that's a boy. Sorry, I don't know. Very good, very good. Soumya or Soumya, girl or boy? Please come. Soumya, right? Okay. Soumya. Okay, okay, very good. Yes, Vandana, you are right. Deepali also right. So first one means parent food should execute. Yes. If I will compile the program G++ main.c++ and if I will run, yes, you can identify child के पास हो मैं लेकिन child के पास food facility नहीं है, तो ये parent के पास जा रहा है और free food खा के चला आ रहा है. सही है.
मतलब वाला दुनिया है भाई। अच्छा मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से मार्क कीजिएगा, चाइल्ड के पास होम है, मान लीजिए आप भुवनेश्वर में रह रहे हैं और आप होम में एक होम ले लिए हैं, लेकिन फूड वाला फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फूड वाला भी फैसिलिटी आ गया है। ये फूड को एक्सेस करने के लिए आपको एक पेमेंट चाहिए। मतलब ये जो फूड फैसिलिटी है ये जोमेटो वाला है और स्विगी वाला है। आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी विथ हॉस्टल फूड, आई नो दैट, राइट? कोई भी हैप्पी नहीं है हॉस्टल वाला फूड में। तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जोमेटो स्विगी दे हैव द फेवरेट एप्लीकेशन इन देयर मोबाइल, दे आर यूजिंग दैट वन। तो फूड किस तरीके से एक्सेस करते हैं, पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। So just give some message. Welcome to. I don't know what the spelling. I never used Zomato or Swiggy, right? I not remember. I never used that kinds of applications, right? It's some spelling mistake. Please forgive me. Welcome to Zomato or Swiggy paid food service, right? And take a lesson also. Please concentrate here. अच्छा ओके, सो नाउ चाइल्ड के पास होम है और चाइल्ड फूड एक्सेस कर रहा है, और मान लीजिए 100 रुपीज प्रोवाइड किया है, मिनिमम पेमेंट 100 रुपीज ही गिवन, एनी पेमेंट्स यू कैन स्पेंड। मान लीजिए 100 रुपीज में स्पेंड करके फूड सर्विस को एक्सेस करना चाहता हूँ। कैन यू प्लीज कंफर्म नाउ, अभी जो फूड चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का। तो अभी जो फूड कॉल होगा ये पेरेंट का फ्री फूड को कॉल करेगा कि चाइल्ड का पेमेंट वाला फूड को कॉल करेगा? Which food should be execute now? Please confirm in your group chat. Yes, very good Kubir, very good Kubir. Yes, all students, very good. Vandana, Jyoti Lakshmi, yes, you are right. Very good. You have a very great strength. You can be a very good programmer. You can be a very good. The thing record only for you, it's required practice. थोड़ा प्रैक्टिस अगर जोड़ देंगे तो आप बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं, राइट? मेरा जो पॉकेट मनी था खत्म हो गया है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अभी बोल रहा है मुझे फूड प्रोवाइड कीजिए, लेकिन मैं पेमेंट नहीं देने वाला हूँ, पहले से फूड मैं पेमेंट दे चुका हूँ और मेरे पास सब पैसा खत्म हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट अभी बोल रहा है फूड चाहिए लेकिन पेमेंट नहीं है भाई मेरे पास। तो क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन? पेरेंट वाला फूड चलेगा और चाइल्ड वाला फूड चलेगा। ऑल आर टेलिंग पेरेंट फूड, ऑल आर टेलिंग पेरेंट फूड, ऑल आर टेलिंग पेरेंट फूड। ओके ओके ओके, बट प्लीज आइडेंटिफाई, अभी आप गलत हो गए हैं। You are wrong. Your account is currently being used in another location. If I will combine the Please program, log out from the other location and try again. You can identify. I am getting an error message. I am getting an error. No parent food. The program is clear to all of you. Is this program is clear to all of you? तो ये पेरेंट फूड में नहीं जा रहा है, पेरेंट फूड में नहीं जाते हुए एरर बोल रहा है कि आपको पेमेंट प्रोवाइड करना है। अच्छा, मेन थिंग इज व्हाट हियर, प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट।
अच्छा, ये जो फूड मेथड है कितना बार अवेलेबल है? होम मेथड एंड फूड मेथड में डिफरेंस क्या है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। होम मेथड जो है पेरेंट वाला, नो पैरामीटर। होम मेथड नो पैरामीटर। यस सर। फूड पेरेंट में नो पैरामीटर, बट फूड चाइल्ड में हैविंग सम पैरामीटर। तो ये क्या हुआ है? ये ओवरराइड हुआ है कि ओवरलोड हुआ है? आप जानते हैं ओवरलोड एंड ओवरराइड में डिफरेंस क्या होता है? कैन यू प्लीज कंफर्म, ये ओवरराइड हुआ है कि ओवरलोड हुआ है? ओवरराइड। लेकिन ओवरराइड का डेफिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ओवरराइड हुआ है, लेकिन ओवरराइड का अगर डेफिनेशन नेम सेम होने के साथ पैरामीटर भी सेम होता है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे फूड मेथड को, फूड मेथड में ये 0 पैरामीटर था, लेकिन यहाँ पे तो 0 पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे तो एक पैरामीटर है। नेम तो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेकंड वाला प्रोटोकॉल था कि पैरामीटर सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे पैरामीटर है। 0 पैरामीटर एंड 1 पैरामीटर। सो अगेन प्लीज कंफर्म, ये ओवरराइड हुआ है कि ओवरलोड हुआ है? यस, देखा नहीं सर, सही है। तो अभी बोल दीजिए, अभी तो देख चुके हैं। So can you please confirm now that's overloading or overriding? Okay, you are telling all students now telling that's overloading. लेकिन ओवरलोडिंग आप भूल गए हैं। ओवरलोडिंग जो होता है ये एक क्लास में होता है। ओवरलोडिंग जो होता है सिंगल क्लास में होता है, मल्टीपल क्लास में ओवरलोडिंग नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन ए सिंगल क्लास। समझ में आ रहा है? तो ओवरलोडिंग जो होता है ये एक क्लास को बिलोंग करता है। तो अभी बोलिए, ये ओवरलोडिंग है कि ओवरराइडिंग है? व्हाट यू आर थिंकिंग? प्लीज कंफर्म, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग? I am not getting a response. Please. That's overloading. Yes, Satya. Nothing. ओवरलोडिंग नहीं है कि ओवरराइडिंग नहीं है? सही है, ये नथिंग है। सही है। दिस mechanism is known as मेथड हाइडिंग मैकेनिज्म। इसको एक नया नाम दिया गया है, नथिंग नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मेथड हाइडिंग मैकेनिज्म। मतलब पेरेंट वाला हाइड का मतलब क्या होता है? छुप जाना होता है, लेकिन दिखाई नहीं होता है। हाइड एंड सीक, राइट? तो पेरेंट वाला जो फूड है, फ्री वाला जो फूड है वो है, लेकिन हाइड हो गया है। कहां से हाइड हो गया है? चाइल्ड हाइड हो चुका है। आई थिंक होम जो इंप्लीमेंट हुआ था दैट्स इंप्लीमेंटेड थ्रू ओवरराइडिंग मैकेनिज्म। बट फूड जो है ये ओवरलोडिंग नहीं है कि ओवरराइडिंग नहीं है। दैट्स इंप्लीमेंटेड थ्रू व्हाट? मेथड हाइडिंग मैकेनिज्म। मतलब पेरेंट के पास फ्री फूड तो है, लेकिन पेरेंट का होने से भी आप चाइल्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट वाला जो फ्री फूड था वो आपसे छुप गया है, हाइड हो चुका है। Is that clear to all of you? Please confirm. Method hiding क्या समझ में आ गया? Yes, new name. I think that new name is clear. Method hiding. Very good. Very good. Right? अच्छा, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मेथड हाइडिंग का डेफिनेशन क्या चलेगा? मेथड हाइडिंग का डेफिनेशन क्या चलेगा? प्लीज कंसेंट्रेट, आई एम राइटिंग। ये जो डेफिनेशन हम लिखे थे
ओवरलोडिंग का अगर हम वही डेफिनेशंस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज मेथड हेडिंग, तो कहां पे डिफरेंट कर, मल्टीपल मेथड बिल्कुल सही है, सेम नेम बिल्कुल सही है, डिफरेंट क्लास बिल्कुल सही है, इनहेरिटेंस बिल्कुल सही है, ओवरराइडिंग सही नहीं है। ओवरराइडिंग की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइडिंग का इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज हाइडिंग। लेकिन शायद एक चीज हम छोड़ दिया है, कौन सा वाला चीज, मेथड, मल्टीपल मेथड सही है, नेम भी सेम सही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंट होगा, सेम पैरामीटर नहीं है, क्या होगा, डिफरेंट पैरामीटर, different parameter. So that's the difference between the overriding and hiding. बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ है, सेम नेम सेम पैरामीटर की जगह सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर हो गया। तो सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर से तो और एक डेफिनेशन था, कौन सा डेफिनेशन था, ओवरलोडिंग का डेफिनेशन था। तो और एक बार पेस्ट कर लेते हैं और उसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, मेथड मल्टीपल मेथड होते हैं, सेम नेम होता है लेकिन सेम पैरामीटर नहीं होता है, क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर होता है, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, लेकिन क्या चेंजेस करना होगा, नॉट इन डिफरेंट क्लास, इन सेम क्लास विद इनहेरिटेंस। एक क्लास में तो इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है, एक क्लास को लेकर आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला टर्म यूज नहीं होगा। इन सेम क्लास इज नोन एज मेथड ओवर लोडिंग मैकेनिज्म, मेथड ओवर लोडिंग मैकेनिज्म। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओवरराइडिंग क्या होता है, हाइडिंग क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग एंड हाइडिंग सेम होते हैं, ओवरलोडिंग एंड हाइडिंग सेम होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, ओवरलोडिंग एक क्लास को बिलोंग्स करता है, एक क्लास को बिलोंग्स करता है, एक क्लास को बिलोंग्स करता है। मेथड overriding, method hiding and method overloading. Same parameter different class inheritance. Hiding में same name different parameter different class inheritance. Overloading में same name different parameter one class. अगर एक क्लास है तो इनहेरिटेंस का कोई सवाल नहीं है। I think this one is clear to all of you. If any doubts, please confirm through my group chat. I am just taking a break. You have to concentrate on this definition. If possible, just write this definition. If any doubts came here, please share with me. Just class program Please spend some time in overloading, hiding and overriding. And if some doubts you are getting, please confirm.
Is this clear to all of you? Please let me know through your group chat. All students, please confirm. So I think you got the difference between the overriding, hiding, and overloading. Very good, no doubts. I got a response. अच्छा, ये जो overloading होता है, hiding होता है, overloading होता है, these things will come under a concept. That concept is technically called what? Polymorphism. उसको क्या बोला जाता है? Polymorphism. Yes, our polymorphism is completed. Polymorphism is completed. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, ये वर्ड जो है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरराइडिंग आता है, हाइडिंग आता है एंड ओवरलोडिंग आता है. पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड. वन इज पॉली, अनदर वर्ड इज व्हाट? मोरफिज्म. ये दोनों वर्ड को मिला के पॉलीमॉर्फिज्म बना है. पॉली का मतलब होता है मेनी. पॉली का मतलब होता है मेनी. अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो केमिस्ट्री बिकॉज आई नॉट स्टडीड +2. मैं +2 स्टूडेंट नहीं हूं. पॉली का मतलब होता है मेनी, बट आई थिंक यू आर बिलोंग्स टू +2, राइट? एंड मोराफिज्म का मतलब होता है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, मोराफिज्म का मतलब बोलेगा फॉर, मेनी फॉर. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मेनी फॉर मतलब एक से ज्यादा डेफिनेशन. तो मेथड ओवरराइडिंग में मल्टीपल मेथड होता है, मेथड हाइडिंग में मल्टीपल मेथड होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग में मल्टीपल मेथड होता है. मतलब मेनी फॉर्म है. तो ओवरराइडिंग हो या हाइडिंग हो या ओवरलोडिंग हो, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ is basically 3 types. 3 तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है. One is method overloading, another is method overriding, another is method hiding mechanism. So I think this one is clear to all of you. Polymorphism is 3 types. Polymorphism means many form. Polymorphism means poly plus morphism. Poly means many. Morphism means form. Many form. Polymorphism means many form. So polymorphism is 3 types in C++: overriding, hiding and overloading. ये कंफ्यूजन वाला जो वर्ड्स हैं, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, हाइडिंग, ये मैक्सिमम टाइम्स आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है. इंटरव्यू में जानते हैं कि स्टूडेंट्स ओवरराइडिंग, हाइडिंग एंड ओवरलोडिंग में डाउट, कंफ्यूजन होता है. सो आई डोंट थिंक any points I left for confusion के लिए मैं कोई points नहीं छोड़ा हूं यहाँ पे. So I think if any person is asking an interview, so now we can speak spontaneously. What is the difference between the overriding, hiding and overloading? So with this discussion, our polymorphism is near about completed. One concept is left, we have on that. But before that, please confirm. Is your polymorphism is clear? Is your polymorphism concept is clear? Polymorphism, please confirm. Is polymorphism what is clear? So that's the feature of a object-oriented programming structure. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर होता है. तो इनहेरिटेंस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, लेकिन अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो विदाउट इनहेरिटेंस आप पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग के लिए इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, बट ओवरलोडिंग एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है. यस, आई गॉट योर रिस्पांस. So I think polymorphism concept is clear. What is overriding, hiding, and so polymorphism को खत्म करने के लिए और एक concept है, that's
also easy, but something concentration is required, right? So what is the time of for the end of my class? Okay, so for today this much, I don't want to give more tasks because this is a occasion time, Roger. Right? I don't know Roger को English में क्या बोलते हैं. I think Roger को English में Roger बोलते हो. So I think today you are getting some time for shopping. Go for shopping, take a dress, take a new dress. You have the time now because when अच्छा basically क्या होता है? जब मैं छोटा था, when I was small, I asked my mom. When I was small, I asked my mom, so mom, when I will enjoy? Huh? When I will enjoy in my life? क्योंकि मैं जब छोटा सा देखा था कि मेरा जो बड़े लोग हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमारे पास बहुत होम टास्क है, स्कूल होता है, होम टास्क होता है और खेलने के लिए भी टाइम नहीं होता है. सो इफ यू आस्क ए स्मॉल चाइल्ड, आर यू हैप्पी? व्हाट द स्मॉल चाइल्ड विल टेल, अरे यार हैप्पी मैं कहाँ हूँ, हैप्पी तो आप हैं. मुझे तो होम टास्क करना होता है, ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस होता है, स्कूल होता है, सुबह 6 बजे उठना होता है स्कूल ज्वाइन करने के लिए, ये खाओ ना खाओ, ये सब प्रॉब्लम्स होता है बचपन में. तो बचपन में हम सोचते हैं कि बड़े लोग एंजॉय कर रहे हैं. अगर आपको एंजॉयिंग योर लाइफ बोलेगा, नहीं यार एंजॉय तो आप कर रहे हैं. सो माय मॉम टोल्ड मी बड़ा हो जाए उसके बाद एंजॉय करेगा. तो जब मैं मैट्रिक पास आउट हो गया उसके बाद फिर से पूछा, मम व्हेन आई विल एंजॉय, बड़ा होने के बाद एंजॉय करूंगा. बट आई थिंक प्लस 2 पढ़ रहा हूँ तो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, बट एंजॉय. प्लस 2 में फिर से आ गया लैब, प्रैक्टिस, स्टडी, प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, राइट. अरे वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर द एंजॉयमेंट. तो फिर से जब मैं मम को पूछा कि मम एंजॉय कब करूंगा, तो मम ने मुझे बोला, मम टोल्ड मी नौकरी कर ले उसके बाद एंजॉय करेगा. आफ्टर डूइंग जॉब. के बाद आई यस अब मैं एंजॉय कर सकता हूं. जॉब मिलने के बाद आई थिंक yes still I'm not able to enjoy. And also I'm not asking to my mom when I will enjoy. I made sure I know in each life you have some task. अगर आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद एंजॉयमेंट करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है. रिटायरमेंट के बाद भी कुछ काम होता है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, राइट. सो इन ईच लाइफ, in each stage of your life, God fixes some tasks. You have to work on that. So enjoyment, I think enjoyment never comes. और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लग रहा था जब मैं सोच रहा था कब एंजॉय करूंगा, I think that was the time to enjoy. Hello. Sir. Okay. So problem I thought that in my life जब मैं पूछ रहा था कि मॉम मुझे कब एंजॉय करना है, I think that was the life where I enjoyed more in my student career. And forget about the enjoyment once you entered in a job profile. काम करने के बाद enjoyment के बारे में भूल जाइए. सही है? So now that's the Roger time. So you can go for the enjoyment, go for shopping, go for new dress. If no new dress, be happy, right? Maybe our family not able to wear some new dress. Yes, my family was not able to buy a new dress. मेरा जो फैमिली है वो इतना रिच फैमिली नहीं है. Maybe your family is something rich, but my family
was a poor family. अगर आप कुछ चीज को खरीद नहीं पाना को गरीब बोलते हैं तो हम गरीब हैं, but I don't think so. If your mind is happy, if your family is happy, so you are not poor, right? अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका माइंड वही जब हैप्पी नहीं है, then you are a poor, right? So that's my personal view. I don't know what's your view. So to live a good life, to enjoy the life, to live a happy life, money does not matter. New dress does not matter. If your parents not able to afford a new dress, because I know nowadays new dress costs near about 2,000, 3,000. I know personally all of you, right? In Saturday जब मैं चेक करता हूँ आपका जो ड्रेस होता है, सिंगल सैटरडे हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता है, सैटरडे आप खुद का ड्रेस पहन के आते हैं. सो आई थिंक दैट near about 4,000, 5,000 cost, right? Sometimes you will face that you are not able to buy that dress also in your life. Sometimes will come. मैं नहीं चाहूंगा कि वो टाइम आपके पास आए, but sometimes maybe that time will come. आपके पास नया ड्रेस खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा कि फैमिली maybe some problem will happen at that time. So not required to worry. That's also enjoyment, right? You have to be happy from your mind inside, right? Okay. So Susan sir called me now. अभी कॉल किए थे और बोल रहे हैं कि सर 10-15 मिनट लेट हो जाएगा पहुंचने में, तो आपको थोड़ा क्लास को कंटिन्यू करना. सोच रहा था छोड़ दूं तो और एक कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म को खत्म कर लेते हैं. एक ही प्रोग्राम है, ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं है. So can you understand my feelings? Yes, correct. जॉब के बाद कोई एंजॉयमेंट नहीं होता. अच्छा, ओके. आई एम जस्ट शेयरिंग वन लाइफ विथ यू. जब मैं कॉलेज में था, डोंट गो फॉर द नेगेटिव, डोंट गो फॉर द नेगेटिव. All the times learn good from me, don't learn bad things from me. I have many bad things. जब मैं कॉलेज में था, I don't want to say but I am sharing, because जब हम गलत किए हैं अगर आप नहीं जानेंगे तो आप सीखेंगे किस तरीके से. गलती से सीखते हैं, सही है. जब मैं कॉलेज टाइम में था तो at that time I was acquainted with smoking. स्मोकिंग के साथ थोड़ा acquainted हो गया. स्मोकिंग, टोबैकोस, राइट, ड्रिंक्स, ये जो हैबिट्स था, ये हैबिट्स क्यों आया था? क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ. आई एम पैशनेटेड फॉर द लेट नाइट स्टडी. लेट नाइट स्टडी मीन्स मैं सुबह 10 बजे उठता था, अभी नहीं, अभी तो 5 बजे उठता हूँ. सुबह 10 बजे उठता था, कॉलेज टाइम में 10 बजे उठता था. उसके बाद फ्रेंड्स बाइक लेके मेरे घर के सामने होते थे, सही है. तो उसके बाद मैं फ्रेंड्स के साथ चला जाता था, कॉलेज करता था, नहीं करता था. आई थिंक यू आर डूइंग रेगुलर क्लासेस, बट मेरा टाइम में मैं उतना रेगुलर क्लासेस नहीं करता था. टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, आई वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट इन क्लासेस. तो उसके बाद मैं दोस्तों के साथ उनके हॉस्टल में जाके टाइम स्पेंड करता था, प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेला, और गो फॉर सम सरप्राइजेस लाइक आज पिकनिक करते हैं, चिकन लाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, सही है. तो उस तरह का कुछ काम चलता था. उसके बाद ये सब काम खत्म करते हुए रात का 9 बज जाता है. सो 9, 10, 11 बजे मैं घर वापिस आता हूँ. 11 PM, I think 11 PM I come back to my home, and at that time my mom is very much angry. उस टाइम में मेरा मॉम पूरा झाड़ू लेके बाहर वेलकम करने के लिए खड़ी होती है, हाथ में झाड़ू और फेस में गुस्सा. दैट्स अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू. आई थिंक यू एंजॉयड दैट, राइट. और उसके बाद कुछ माड़वी खाना होता है, खा लेता हूँ. उसके बाद ये जो फेंकते हैं, जो कुत्ते को फेंकते हैं ना, जो रोटी, उसी हिसाब से मुझे मिलता है खाना. घर में मिलता था, अभी थोड़ा डिफरेंट है, ले ये खा ले. तो वो खाने के बाद देन आई टेक ए स्लिप
of 1 hour or 30 minutes. Then again I wake up. 30 minutes sleep के बाद मैं फिर से और मेरा बुक स्टार्ट होते थे वहां पे. सो अप टू आई थिंक 12 बजे, रात का 12 बजे मेरा पढ़ाई शुरू होता था और चलता था सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक, 5, 6, जब तक कंटेंट खत्म नहीं होता मेरा पढ़ाई का. और रात का 12 बजे से लेके 7 और 5 पढ़ाई करता था. उसके बाद मॉर्निंग वॉक था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जब जस्ट सुबह होने वाला होता है लेकिन उसका जो लाइट्स नहीं आते होते हुए, तो उस टाइम में बर्ड्स जो होते हैं उनका साउंड बहुत ही अच्छा होता है. अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम में कभी बाहर चलिए और बर्ड्स का साउंड को एंजॉय कीजिए. तो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग्स, नहीं? यस, आई नो. तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, आपके लाइफ में भी आएगा. आपको वहां से ओवरकम करना है, निकलना है. किस तरीके से निकलेंगे आप हमको देखिए, हम किस तरीके से लिखे हैं. तो सीनियर्स को देखना होता है. सीनियर्स को देख के सीनियर्स का एक्सपीरियंस को फील करके आप वहां से निकल सकते हैं. तो सुबह 5 बजे तक पढ़ने के बाद मैं वो जाता था बाहर, और बाहर जाके क्या करना है, स्मोक करना है और कुछ पान पुड़िया खा के वापिस आ जाना है. तो वहां से क्योंकि अगर आप रात में काम करते हैं तो ये सब चीज रिक्वायरमेंट होता है. इसीलिए मेरा सजेशन है, डोंट गो फॉर द नाइट स्टडी. कभी भी नाइट स्टडी के लिए मत जाइए. अगर आपको स्टडी करना है तो सुबह 4 बजे उठिए. दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, राइट? अगर आप रात में काम कर रहेंगे तो आपके पास डेफिनेटली बैड हैबिट्स आ जाएंगे. मैक्सिमम चांसेस होता है बैड हैबिट्स वहीं से आते हैं. सही है. तो जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम में मेरा ध्यान नहीं रहता था कि कितना पैसा मैं स्पेंड कर रहा हूँ ये बैड हैबिट्स के लिए. I never thought how much per day I am spending for my bad habits, because पैसा मेरा नहीं था. पैसा किसका था? मेरा बुढ़ा बाप का था. और मेरा बुढ़ा बाप का जो पैसा है वो मेरे लिए एंजॉयमेंट था. मैं उसको हिसाब नहीं करता था. लेकिन आज जब मैं खुद से पैसा इनकम कर रहा हूँ, आई थिंक नाउ द डेज आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल सिगरेट. अभी मैं स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर चुका हूँ. क्यों? क्योंकि एक सिगरेट का दाम होता है 10 रुपये. अगर मैं 2 घंटा खड़ा होके पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं 10 रुपया कमाता हूं भाई. आफ्टर स्टैंडिंग 2 hours in front of the student, I am getting 10 rupees and I am spending that 10 rupees in a cigarette that will continue for 30 seconds. मैं 2 घंटा लेबर करके जो पैसा कमाया हूं वो 30 सेकंड में वेस्ट कर रहा हूं. At that time, my brain giving the response, "Arey, what you are doing, man?" And at that time, I got, yes, what the life I left previously, that was the enjoyment of my life. And now what the things is going on, that's the responsibility of my life. I think many things you can identify from this story, right? But don't hate me. Don't hate me. Don't hate me. Is that clear to all of you? Please confirm through your group chat. Please confirm through your group chat. Is that clear to all of you? I think maximum boys are giving the response. Okay, very good. No problem. So definitely some down will come in your life, but उसको सही टाइम में रिकवर करना है. अगर आप लेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी. तो डेफिनेटली बैड थिंग्स विल हैपेंस टू यू, बट यू हैव टू रिकवर दैट थिंग्स. आपको वहां से जल्द रिकवर होके वापस आना है. सही है. दैट गट्स आर रिकवर्ड. जो भी कीजिए, सही कीजिए, गलत कीजिए, लेकिन आपका जो काम है उसको सही कीजिए. मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था. बैड हैबिट्स थे, लेकिन आई वाज द टॉपर इन माय कॉलेज. दैट वाज द गुड थिंग, right? Means my friends becomes enemy, my faculties become enemies.
they are asking me, "Arey, Sritam, you are not studying in completely, but how you got top mark in this semester?" That's for God's right. वो होना चाहिए. जो काम किया है वो काम को मत भूलिए. Maybe you are off or maybe you are down in your life, but don't forget your work. Right? Okay. So let's back to the programming concept. Acha, we know regarding pointer mechanism, right? We know regarding pointer mechanism, right? Acha, later I am writing a point. After that, I will prove. Please concentrate. That's important. It's not going to be held some exam. Exam तो नहीं होने वाला है आपका, but it's required. जब आप जावा के लिए जाएंगे, जब आप पाइथन के लिए जाएंगे, ये कंसेप्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. जावा में भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पाइथन में भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग वहीं पे भी होता है. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है. सही है, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है. तो पेरेंट का भी पॉइंटर हो सकता है एंड चाइल्ड का भी पॉइंटर हो सकता है. पेरेंट पॉइंटर हो सकता है, चाइल्ड का पॉइंटर हो सकता है. जस्ट रिमेंबर सम पॉइंट्स. व्हाट C++ इज टेलिंग हियर. C++ बोलता है parent pointer can work with the parent object. Also, please remember, also can work with the child object. Parent pointer can work with parent object. Some spelling mistake, please ignore that one. Parent pointer can work with parent object. Also can work with the child object. But child pointer can only work with the child object. ये child object के साथ ही काम कर सकता है. Cannot work with the parent object. I think this point, I think you got this point. So दो तरह का पॉइंटर होता है, दो तरह का क्लास होता है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस. Work with the child object, cannot work with the parent object. Please confirm. So later, what the points we learn? I am going for the testing. उसको टेस्ट करके देख लेते हैं. Please concentrate. अच्छा, पेरेंट का पॉइंटर है, पेरेंट पॉइंटर P वर्क विथ पेरेंट टाइप मेमोरी. ये तो बिल्कुल सही है. पेरेंट का पॉइंटर पेरेंट के साथ काम कर सकता है. If I will compile the program, there is some error. I think some spelling mistake I implemented. Yes, parent. Work with the parent type memory. If I will compile the program G++ main.C++, there is no any error. कोई error नहीं है. अच्छा, parent type pointer also can work with which type memory? Child type memory. Child के memory के साथ भी काम कर सकता है. देखते हैं. अगर आप देखेंगे ये प्रोग्राम में पॉइंटर है टाइप का, लेकिन मेमोरी है चाइल्ड टाइप का. यू नो, न्यू allocates memory. If I will compile the program, there is no any error. कोई भी error नहीं है. Parent pointer can work with parent object, also can work with child object. अच्छा, child pointer थोड़ा चेक कर लेते हैं. Child pointer can work with child object. Yes, child pointer है, child object है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल सही है, कुछ एरर नहीं है. बट मान लीजिए चाइल्ड पॉइंटर पेरेंट के साथ काम करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इज दिस पॉसिबल? इफ आई विल कंपाइल द प्रोग्राम, इट्स गिविंग एरर. एंड व्हाट द एरर आई एम गेटिंग? invalid conversion from parent type pointer to child type pointer. I think you got this one. So what is the point we identified? Parent pointer can work with parent object, also can work with the child object, but child pointer only works with the child object.
cannot work with the parent object. I think this one is clear to all of you. We already tested. Please confirm in your group. Please confirm in your group chat. Is that concept is clear to all of you? Yes. Okay. Very good. Very good. अच्छा, नाउ अभी एक काम करने के लिए जाएंगे जो आप जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप जानते हैं, आई थिंक यू कैन गिव द आंसर. अच्छा, मान लीजिए मैं एक पेरेंट टाइप का पॉइंटर ले रहा हूं, लेकिन मेमोरी है चाइल्ड टाइप का. प्लीज कंफर्म फर्स्ट. देखिए फर्स्ट यहां पे देखिए किस तरह का पॉइंटर है. पेरेंट टाइप का पॉइंटर है, लेकिन कौन सा मेमोरी के साथ काम कर रहा है? चाइल्ड मेमोरी के साथ काम कर रहा है. थोड़ा ध्यान से बोलना है. अच्छा, अगर P से हम होम को कॉल करेंगे, आप जानते हैं कि होम जो एक मेथड है वो पेरेंट क्लास के भी पास है और चाइल्ड क्लास के भी पास है. क्या हुआ है? ओवरराइडिंग हुआ है. मतलब सेम नेम है और सेम पैरामीटर भी है. थोड़ा ध्यान से बोलना है. P है पेरेंट टाइप का, लेकिन मेमोरी है चाइल्ड टाइप का. आप जानते हैं जब पॉइंटर से मेंबर को एक्सेस किया जाता है तो आपका ऑपरेटर चलता है. दैट्स नथिंग न्यू हियर. लेकिन थोड़ा ध्यान से बोलिएगा, अगर P से हम होम को कॉल करेंगे तो ये पॉइंटर के हिसाब से काम करेगा और ये मेमोरी के हिसाब से काम करेगा. अगर पॉइंटर के हिसाब से काम हुआ तो कौन सा वाला होम चलेगा? पेरेंट वाला. अगर मेमोरी के हिसाब से काम हुआ तो कौन सा होम चलेगा? चाइल्ड वाला. सही है? आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट. तो कैन यू प्लीज कंफर्म P के लिए कौन सा होम चलेगा? कंफ्यूजन डेफिनेटली है. P है पॉइंटर पेरेंट टाइप का, लेकिन P काम कर रहा है चाइल्ड के साथ. कैन यू प्लीज कंफर्म इन योर ग्रुप चैट which home should be executed? Which home should be executed? आई थिंक मेमोरी. मेमोरी का मतलब कुबेरा बोल रहे हैं मेमोरी. मेमोरी का मतलब चाइल्ड. मेमोरी चाइल्ड का है, क्योंकि अगर आप मेमोरी के हिसाब से काम करेंगे तो चाइल्ड वाला होम चलना चाहिए. अदर स्टूडेंट प्लीज कंफर्म. पेरेंट होम और चाइल्ड होम. लेकिन थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सोचिए फर्स्ट. डोंट गिव द रिस्पॉन्स. मैं बोलता हूं मेमोरी कब एलोकेट होता है? मेमोरी एलोकेट होता है रन टाइम में. मेमोरी एलोकेट होता है रन टाइम में. रन टाइम में मेमोरी एलोकेट होगा. एग्जीक्यूशन के टाइम में मेमोरी एलोकेट होता है. एग्जीक्यूशन से पहले क्या होता है? कंपाइल होता है. तो दो चीज होता है, एक होता है कंपाइल और एक होता है रन. सही है? दो चीज होता है, कंपाइल एक होता है और एक होता है रन. प्लीज कंसेंट्रेट. प्लीज कंसेंट्रेट. कंपाइल एंड रन. कंपाइल के हिसाब से ये वाला चलना चाहिए, रन के हिसाब से मेमोरी आ गया होगा तो चाइल्ड वाला चलना चाहिए. प्लीज कंसेंट्रेट. आई एम राइटिंग. C++ में दो स्टेप होता है. एक होता है कंपाइल वाला स्टेप और एक होता है रन वाला स्टेप. मेमोरी कहां पे आता है? मेमोरी का कंसेप्ट आता है रन में. तो अगर आप कंपाइल में सोच रहे हैं, अगर आप कंपाइल में सोच रहे हैं, कंपाइल के हिसाब से सोचेंगे जहां पे मेमोरी नहीं होगा. आई एम रिपीटिंग अगेन. कंपाइल टाइम में मेमोरी नहीं होता है. मेमोरी कहां पे होता है? रन टाइम में होता है. तो अगर आप कंपाइल के हिसाब से सोचेंगे, कंपाइल टाइम के हिसाब से सोचेंगे और आप रन टाइम के हिसाब से सोच सकते हैं. रन टाइम में मेमोरी होता है, कंपाइल टाइम में नो मेमोरी होता है. मेमोरी कंपाइल टाइम में एलोकेट नहीं होता है. आप जानते हैं इसको. रन टाइम में मेमोरी एलोकेट होता है. तो अगर आप कंपाइल टाइम में सोच रहे हैं तो आई थिंक पेरेंट वाला होम चलना चाहिए. अगर आप रन टाइम को लेके सोच रहे हैं जहां पे मेमोरी आ गया है तो कौन सा वाला चलना चाहिए? चाइल्ड वाला चलना चाहिए. चाइल्ड वाला होम चलना चाहिए. सही है?
तो अगर कंपाइल टाइम में सोचेंगे तो पेरेंट वाला चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेमोरी नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा मतलब चाइल्ड तो नहीं आया होगा। रन टाइम में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मेमोरी होगा, तो मेमोरी अगर है तो चाइल्ड है, तो चाइल्ड वाला होम चलना चाहिए। सो व्हाट यू आर थिंकिंग, कंपाइल टाइम विल वर्क और रन टाइम विल? प्लीज कंफर्म, कंपाइल टाइम काम करेगा कि रन टाइम काम करेगा? प्लीज कंफर्म इन योर ग्रुप चैट, कंपाइल टाइम काम करने वाला है कि रन टाइम काम करने वाला है? Okay, I got some response. Please, other student, please give some response. Bandana, you were telling compile time. Some other students, please confirm first. Compile time will work or run time it will work? Okay, Deepali, you were telling run time. Swati, run time. Jyoti Lakshmi, run time. Okay. रन टाइम, रन टाइम। अच्छा, मैं जाता हूं प्रोग्राम में, याद रखिए थोड़ा। बाय डिफॉल्ट जो चलता है, बाय डिफॉल्ट जो चलता है, बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो कंपाइल टाइम चलता है। बाय डिफॉल्ट जो चलता है कंपाइल टाइम, मतलब एक्स्ट्रा नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वाला चले। हिसाब से चला तो, and if I will run, you can identify I am getting the output. Welcome to parent home. Welcome to parent home. So by default कौन सा बाइंडिंग चल रहा है? हाँ, this mechanism is technically called what? Binding. Binding mechanism. So binding दो तरह का हो सकता है, बाइंडिंग दो तरह का हो सकता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो सकता है और रन टाइम बाइंडिंग हो सकता है। बाइंडिंग का मतलब क्या है? बाइंड टू द होम, पॉइंटर को लेके होम के साथ बाइंड कीजिए। अगर कंपाइल टाइम बाइंड हुआ तो मेमोरी नहीं होता है तो पेरेंट के हिसाब से चलेगा। अगर रन टाइम बाइंड हुआ जहां पे मेमोरी होता है तो ये मेमोरी के हिसाब से काम करेगा। सही है? तो यहाँ पे कौन सा बाइंडिंग चल रहा है? कैन यू प्लीज कंफर्म, यहाँ पे कौन सा बाइंडिंग चल रहा है? कंपाइल टाइम बाइंडिंग चल रहा है कि रन टाइम बाइंडिंग? अभी तो आप आउटपुट देख चुके हैं। So according to the output, please confirm which binding is working, compile time binding or runtime binding? Yes, yes, you are right. Please confirm all student. Yes, all are right. All are right. Very good. By default, compile binding चलता है। अगर आप रन टाइम बाइंडिंग चलाना चाहते हैं, अगर आप रन टाइम बाइंडिंग चलाना चाहते हैं तो एक कीवर्ड होता है। Which keyword is required? Virtual. Virtual keyword is required. Please concentrate. अगर आप रन टाइम बाइंडिंग करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, आपको एक कीवर्ड लिखना होगा। कौन सा कीवर्ड लिखना होगा? वर्चुअल कीवर्ड लिखना होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा वर्चुअल मेथड। अगर कोई मेथड से पहले वर्चुअल लिखा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल मेथड बोला जाता है, वर्चुअल मेथड। तो अगर कोई पूछ रहा है वर्चुअल मेथड क्यों चाहिए, बिल्कुल इजी है सर, वर्चुअल मेथड क्यों चाहिए? सर, virtual method is required to implement runtime binding. Runtime binding को implement करने के लिए which method is required? Virtual method is required. तो अगर अभी runtime binding चलेगा तो रन टाइम में मेमोरी होता है। अगर मेमोरी के हिसाब से काम करेंगे तो कौन सा होम चलना चाहिए? चाइल्ड वाला होम चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, और चलेगा भी। देख लेते हैं। If I will compile the program and if I will run, yes, you can identify. Now I am getting the message, welcome to child home. Welcome to child home. So if you want to implement runtime binding को implement करने के लिए I am just writing to implement runtime binding, to implement runtime binding, virtual method is used in
C++. I think that's very easy. रन टाइम बाइंडिंग को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल मेथड का इस्तेमाल करेंगे. और एक चीज याद रखिएगा, कंपाइल टाइम बाइंडिंग को हम अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं. अर्ली बाइंडिंग मतलब जल्दी हो जाता है. रन टाइम बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं. लेट बाइंडिंग क्योंकि बाद में होता है. अर्ली बाइंडिंग मतलब जल्दी हो जाता है, लेट बाइंडिंग मतलब बाद में होता है. बाद में होता है मतलब मेमोरी के हिसाब से काम करता है, जल्दी होता है मतलब मेमोरी के हिसाब से काम नहीं करता है. So I think this one is clear to all of you. Please confirm in your group chat. Please confirm. Is this concept, binding concept, early binding, late binding, compile time binding, run time binding? I think this one is clear to all of you. Virtual method. अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे वर्चुअल फंक्शन लिखा गया है, लेकिन वर्चुअल फंक्शन गलत है, वर्चुअल मेथड होना चाहिए था वहां पे. तो अगर कोई वर्चुअल फंक्शन बोल रहा है तो वही बोल रहा है. वर्चुअल मेथड जो है, वर्चुअल फंक्शन वही है. तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल मेथड? वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल मेथड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग. Yes, very good. I think this concept is clear to all of you, right? So I think we reached at the end stage of oops का अभी end stage में पहुंच गए हैं. एक ही चीज बाकी है oops खत्म करने के लिए, that's type of inheritance. Types of inheritance we will study. After that our polymorphism concept is completed. Polymorphism खत्म हो गया है. तो polymorphism में 5 कंसेप्ट होता है. 5 कंसेप्ट: ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, हाइडिंग, ये 3 हो गया. अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, और वी कैन टेल compile time binding and run time binding. Only 5 concepts. 3 types of polymorphism. So I think this concept is clear to all of you. So in the next class, I think next day I'm not going to take the class, right? Saturday.